أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب تھل کی اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانوں کے جوڑ بنے اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی اور جب نامۂ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی. ترجمہ کنزُل عرفان. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر سلگائے جائیں گے اور جب جانوں کا جوڑا جائے گا اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا اور جب نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی. اذا الشمس کورت. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اس سورت کی ابتدائی 14 آیات میں 12 چیزوں کا ذکر کیا گیا. 1. جب سورج کے نور کو زائل کر دیا جائے گا. 2. جب ستارے جھڑ کر بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑیں گے اور کوئی ستارہ اپنی جگہ پر باقی نہ رہے گا. 3. جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. 4. جب وہ اونٹنیاں جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں گے اور ان کا دودھ نکالنے کا وقت قریب آ گیا ہوگا آزاد پھریں گی کہ ان کو نہ کوئی چرانے والا ہوگا اور نہ ان کا کوئی نگران ہوگا. اس دن کی دہشت اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان اونٹنیوں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا. 5. جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وحشی جانور جمع کیے جائیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں پھر خاک کر دیے جائیں گے. جب سمندر سلگائے جائیں گے پھر وہ خاک ہو جائیں گے. 7. جب جانوں کے جوڑ بنیں گے
मुफस्सिरीन ने इसके मुख्तलिफ माना बयान किए हैं। एक, नेक लोग नेकों के साथ और बुरे लोग बुरों के साथ कर दिए जाएंगे। दो, जाने अपने जिस्मों के साथ या अपने अमलों के साथ मिला दी जाएंगी। तीन, ईमानदारों की जानें हूरों के साथ और काफिरों की जानें शयातीन के साथ मिला दी जाएंगी। चार, रूहें अपने जिस्मों की तरफ लौटा दी जाएंगी। आठ, जब उस लड़की से पूछा जाएगा जो जिंदा दफन की गई हो कि किस खता की वजह से उसे कत्ल किया गया। अहले अरब का दस्तूर था कि ज़माने जाहिलियत में वो लड़कियों को जमीन में जिंदा दफन कर देते थे और ये सवाल कातिल की सरजनिश के लिए होगा ताकि वो लड़की जवाब दे कि मैं बेगुनाह मारी गई थी। 9, जब नामे अमाल हिसाब के लिए खोले जाएंगे। 10, जब आसमान अपनी जगह से ऐसे खींच लिया जाएगा जैसे ज़िबाह की हुई बकरी के जिस्म से खाल खींच ली जाती है। 11, जब जहन्नम को अल्लाह ताला के दुश्मनों के लिए भड़काया जाएगा। 12, और जब जन्नत को अल्लाह ताला के प्यारों के करीब लाया जाएगा। उसके बाद फरमाया कि जब ये 12 चीजें वाक़े होंगी तो उस वक्त हर जान को मालूम हो जाएगा कि वो कौन सी नेकी या बदी अपने साथ लेकर हाजिर हुई है। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के बारे में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस आयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाम लेकर फरमाया, एक साहब ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़माने जाहिलियत में अपनी 8 बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हर बेटी की तरफ से एक गुलाम आजाद कर दो। उस शख्स ने दोबारा अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास गुलाम नहीं है, अलबत्ता मैं ऊँटों का मालिक हूँ। इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो हर बेटी के बदले एक ऊँट हदिया कर दो। ये दीन इस्लाम का ही अजीम कारनामा है जिसने बेटियों को अपने लिए बदनामी का बाइस समझकर जमीन में जिंदा दफन कर देने वाले लोगों को उस इंसानियत कुछ जुल्म का एहसास दिलाया और उन लोगों की नजरों में बेटी की इज्जत और कायम किया और बेटियों के फजाइल बयान करके मुआशरे में बरसों से जारी इस दर्दनाक अमल का खात्मा कर दिया। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम औरतों पर जुल्म नहीं करता बल्कि उन्हें हर तरह के जुल्म से बचाता है, चाहे वो जुल्म उनकी नाहक जिंदगी खत्म करके किया जाए या उनकी इज्जत और नामूस और उनके जिस्म के साथ खेलकर या उनके जिस्म की नुमाइश करवाकर किया जाए। इससे उन लोगों को अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए जो औरत के बारे में दीन इस्लाम के अहकामात को उसके ऊपर जुल्म करार देते हैं। चादरों चाद दीवारी की औरत के हक में नाइंसाफी कहते हैं और रोशन ख्याली और नाम निहाद तहजीब व तमद्दुन के नाम पर औरत को शर्म व हया से आरी करने में इस्लाम की शान समझते हैं। वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम भड़काई जाएगी।
इससे मुराद ये है कि क़ियामत के दिन जहन्नम की भड़क में मजीद इजाफा किया जाएगा ताकि वो कुफार को हमेशा के लिए जलाती रहे, वरना जहन्नम तो जब से पैदा की गई है तब से ही भड़क रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग 1000 साल भड़काई गई यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल भड़काई गई यहाँ तक कि वो सफेद हो गई, फिर 1000 साल भड़काई गई यहाँ तक कि वो सियाह हो गई। अब वो इंतहाई सियाह है। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, हर जान को मालूम हो जाएगा जो हाजिर लाई। जब लोगों को अपने किए हुए अच्छे बुरे अमाल मालूम होंगे तो उस वक्त उनका जो हाल होगा उसके बारे में एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। सूरह आले इमरान आयत नंबर 30। तर्जमा, याद करो जिस दिन हर शख्स अपने तमाम अच्छे और बुरे अमाल अपने सामने मौजूद पाएगा तो तमन्ना करेगा कि काश उसके दरमियान और उसके अमाल के दरमियान कोई दूर दराज की मसाफत हाइल हो जाए। और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन आयात में ज्यादा से ज्यादा गौर करे ताकि उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो और उसे गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की सोच नसीब हो। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज व अकारीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।